انفارمیشن منسٹر صاحبہ نے ایک اسٹیٹمنٹ دی تھی، یہ جو ہمارا مئی کے اندر جو ہماری انڈیا اور پاکستان کے درمیان جو جنگ ہوئی، اور اس اسٹیٹمنٹ کے دو بڑے امپورٹنٹ کمپوننٹ تھے۔ ایک کمپوننٹ یہ تھا کہ یہ اسٹیٹمنٹ ایکس پرائم منسٹر، یہ جو پوری کی پوری جو ہمارا ریسپانس تھا، یہ ایکس پرائم منسٹر میاں ازبا بخاری صاحب، آپ اس دن ہاؤس میں نہیں تھیں۔ بگیر صاحب نے یہ آپ کے کسی بیان پر کہا تو میں نے کہا ہمارے رولز یہ کہتے ہیں کہ جب تک دا پرسن، دا ممبر اور دا منسٹر جن کے بارے میں بات کی جا رہی ہے وہ خود نہ ہوں تو آپ اس پہ بات نہیں کر سکتے۔ تو ابھی میرا خیال بریگیڈیئر صاحب جو میں ایزیوم کر رہا ہوں آپ کی توجہ نہیں تھی، میں کہا آپ سے سوال کر رہے ہیں۔ سر میں چاہوں گا کہ ٹو ایڈریس یو، منسٹر صاحب سن رہی ہیں، محترمہ نے ایک بیان دیا تھا مے بی اراؤنڈ 11 یا 12 مئی کو، آئی ڈونٹ ایگزیکٹلی ریمبر ناؤ، جس میں انہوں نے یہ کہا تھا کہ جو پاکستان نے رسپانس دیا انڈیا کو، اس کو ڈیزائن کیا تھا میاں محترم نواز شریف صاحب نے، اور اس کی جو اپروول تھی وہ بھی میاں صاحب نے دی تھی، اور آئی ایم شور اگر ڈیزائن انہوں نے کیا تھا، اپروول انہوں نے کی تھی، تو مجھے یقین ہے انہی کے آرڈرز کے بعد یہ جو رسپانس پاکستان نے دیا تھا یہ ایگزیکیوٹ بھی ہوا ہوگا۔ میں صرف میرے بڑے شدید تحفظات ہیں اس اسٹیٹمنٹ کے اوپر سر، اور بغیر کسی پولیٹیکل باعث کے ساتھ ہیں۔ پہلے تو میں یہ چاہوں گا کہ اسے صرف بتا دیں کہ ڈز شی اسٹینڈ بائی ہر اسٹیٹمنٹ آن دس فلور آف دی ہاؤس، بیکاز میرے پاس ریکارڈڈ اسٹیٹمنٹ ہے اور بہت زیادہ ٹی وی چینل پہ یہ اسٹیٹمنٹ چلی ہے۔ میں اگلا سوال جو ہے سر، یا اگلی جو ریکویسٹ ہے آپ کے تھرو ان تک پھر فلور آف دی ہاؤس پہ پھر پہنچاؤں گا۔ لیٹ می ریفریز اٹ۔ سر آئی ایم کلیئر اباؤٹ اٹ، میں نے سن لیا جی، پہلے بھی اس دن سن لیا تھا، میں آ گئی تھی لیکن آپ تشریف نہیں رکھتے تھے۔ آپ کی بڑی مہربانی کہ آپ نے رولز کے مطابق جو ہے وہ یہ بتایا فاضل ممبر کو کہ جب کوئی موجود نہ ہو تو یہ گفتگو نہیں کرنی چاہیے۔ فاضل ممبر کو بھی سیکھ لینا چاہیے کہ جب کوئی موجود نہیں ہے تو اس کی غیر موجودگی میں سیاسی بیانات جو ہے وہ نمبر ٹانگنے کی بجائے اگر اس کی موجودگی میں بات کی جائے تو یہ بھی زیادہ بہتر ہوتا ہے۔ میری گزارش یہ ہے کہ جناب اسپیکر، جو ابھی ریکارڈنگ آپ بھی ذرا نکلوائیے گا، ابھی معزز ممبر نے میرے نام سے جس طرح سے جو جملے ایٹریبیوٹ کیے ہیں وہ صریحاً غلط ہیں۔ میں اپنی سٹیٹمنٹ پہ آج بھی پوری طرح جو ہے وہ دیانتداری اور پوری ذمہ داری سے اس کے اوپر کھڑی ہوں، اور میری سٹیٹمنٹ، میں نے جو سٹیٹمنٹ دی، میں نے کہا کہ جو سابق وزیر جی سابق وزیر اعظم اور قائد میاں محمد نواز شریف صاحب، ان کی زیر نگرانی سارا آپریشن ڈیزائن اور امپلیمنٹ ہوا، اور یہ بات میں اسی ذمہ داری سے دوبارہ فلور آف دا ہاؤس کہہ رہی ہوں، اور میری بات کو اگلے ہی دن وزیر دفاع جناب خواجہ آصف صاحب نے کہا، کوٹ ان کوٹ، پوری ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں کہ میاں محمد نواز شریف صاحب ہر ایک حکمت عملی اور ہر ایک میٹنگ کا پارٹ اینڈ پارسل تھے۔ جناب اسپیکر، اس کی اور بھی بہت ساری ڈیٹیلز ہیں، لیکن میں ان لوگوں کو جواب دوں جن کے مطابق 9 مئی بھی فالس فلیگ تھا، جن کے مطابق یہ مودی اور پی ایم ایل این کی گورنمنٹ کا گٹھ جوڑ ہے، بقول علیمہ خان کے یہ جنگ تو ہو ہی نہیں رہی، یہ تو ایک ٹوپی ڈرامہ ہے، جنہوں نے آج تک بھی اور آج بھی اس گھڑی پہ کھڑے ہوئے بھی ان کے لیڈران کے سٹیٹمنٹس فار اس ملک کے لیے، اس ملک کی افواج کے لیے، اس ملک کی سالمیت کے لیے کتنا بڑے زہر قاتل ہے، وہ آج اللہ کی شان ہے مجھ سے سوال پوچھ رہے ہیں، اور جو مجھ سے سوال پوچھا گیا ہے میں دوبارہ پوری ذمہ داری اور پوری دیانتداری سے کہہ رہی ہوں کہ وزیر اعظم شہباز شریف صاحب کے ساتھ قائد میاں محمد نواز شریف اس پورے آپریشن کا پارٹ اینڈ پارسل تھے، اور ایک اس وقت پورے ملک میں اس سٹیچر کا ایک ہی لیڈر ہے جس کا نام میاں نواز شریف ہے، اور انہوں نے جو ان کے انٹرنیشنل تعلقات ہیں، جو ان کے انٹرنیشنل تعلقات ہیں جو اب ذاتی تعلقات میں بدل چکے ہیں بہت سارے ممالک کے ساتھ، ان کے حوالے سے جو ان کے پاس ایک وزڈم ہے ایز 3 طرفہ پرائم منسٹر رہنے کے حوالے سے، دوسرا جو ایٹمی دھماکے کل ہی
जो है वो मई होने जा रहा है जनाब स्पीकर, और उस वक्त भी पाकिस्तान के ऊपर जिन क्राइसिस से पाकिस्तान गुजर रहा था, वो तमाम किस्म की फैसिलिटेशन, वो तमाम तरह की गाइडेंस, वो तमाम एडवाइस मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब की शहबाज साहब के साथ मौजूद थी। और PMLN की हुकूमत वफाक में हो या पंजाब में हो, वो सब कुछ वो करती है जो मियां नवाज शरीफ कहते हैं। मैं अब पहले जरा मैं आपके अच्छा जनाब स्पीकर 20 सेकंड बात करूंगा, ज्यादा नहीं कहूंगा। अगर नवाज शरीफ साहब में इतनी क्वालिटीज हैं जिसके नाम पर ये वोट लेके आए, उसको प्राइम मिनिस्टर से बना नहीं सके, उनको प्राइम मिनिस्टर बना देते। MNA मुश्किल से जितना बना है। जी ब्रिगेडियर साहब, 20 आपने 20 सेकंड कहे, वो हो गए। जी ब्रिगेडियर साहब, जी ऑर्डर इन द हाउस प्लीज, ऑर्डर इन द हाउस। हसन एक सेकंड जी, ऑर्डर इन द हाउस जी, ऑर्डर इन द हाउस जी ब्रिगेडियर साहब, जी ब्रिगेडियर साहब प्लीज, जी ब्रिगेडियर साहब। चले जिस पराये में बात है पहले वहां पर आने दें। ब्रिगेडियर साहब प्लीज। अज़मा कह रही है, हसन प्लीज। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक सेकंड। अज़मा कह रही है कि शी स्टैंड्स टू एवरी वर्ड व्हाट शी सेड। सर, मैं जो उन्होंने कही है बहुत अच्छे तरीके से कहा है कि शी स्टैंड्स वट एवर शी मेड दी स्टेटमेंट। मेरे सवाल ही इसके बाद शुरू होते हैं, एंड आई हैव ऑल द राइट टू स्पीक ऑन दिस फ्लोर ऑफ द हाउस बिकॉज इट्स इंपॉर्टेंट इशू है। मेरी परसेप्शन जो है, और इस पाकिस्तानी की जो परसेप्शन है, जिस कवानीन के तहत, जिस रूल्स के तहत ये पाकिस्तान, स्टेट ऑफ पाकिस्तान चल रही है, मुझे उसका बहुत ख्याल है सर। लोग सवालों जवाब पूछते हैं, उसका जवाब देना जरूरी है। मेरे सवाल ये है कि सर, जब डिजाइन ये किया गया तो क्या ये डिजाइन सिर्फ प्राइम मिनिस्टर हाउस में बैठ के हुआ था? आई हैव माई फ्यू ऑब्जर्वेशंस एंड असम्पशन एंड आई एम गोइंग टू रिस्पॉन्ड, आई एम गोइंग टू रेज दोज इश्यूज। क्या ये प्राइम मिनिस्टर हाउस में हुआ था? क्या इसके ऊपर, एक मिनट सर, क्या इसके ऊपर जेंटलमैन, लेडीज एंड जेंटलमैन, लेट मी प्लीज, आपके जो भी जज्बात हैं, बट दिस इज अ हाउस विच आई एम कंडक्टिंग एंड आई एम फेयरली गिविंग चांस टू एवरीबडी टू स्पीक whatever they say. If I would have ruled out Brigadier Saab not to ask Azma, I would have said no, but I have given her the floor. तो प्लीज आप इस चीज की रिस्पेक्ट करें, एंड देयर शुड बी नो हुल्लड़बाजी, मेरी दरख्वास्त भी गई और इन्होंने उन्हीं प्लेटफॉर्म्स पे बैठकर ये बात की कि मैंडेटेड था टू द नेशनल सिक्योरिटी कमेटी ने, कैबिनेट ने, इन सब ने मैंडेट किया कि जो फोर्सेस अपना रिस्पॉन्स करेंगी, दे आर फुली एम्पावर्ड एंड मैंडेटेड टू स्ट्राइक बैक। ये बात मैंने इनकी सुनी। और जो इनका पहली बात थी, जो आपने सवाल उठाए हैं, आपके सवालों में काफ़ी वजन है, लेकिन उनकी जो गुफ्तगू थी वो खुद एक्सप्लेन करेंगी, उन्होंने जवाब खुद देना है, लेकिन मैं कंस्ट्रू कर रहा हूं और उनको फ्रेज कर रहा हूं। इनका जो ये सवाल है, आपकी स्टेटमेंट में कहीं मैंने नहीं देखा कि आपने कहा है कि वो नेशनल सिक्योरिटी कमेटी में रही हैं। मैं फ्रेज कर रहा हूं ताकि आसानी हो जाए, और इसमें कोई मजीद, क्योंकि ये मसला ऐसा है, मेरी जिंदगी का ये सबसे काबिल फख्र लम्हा है जो मैंने गुजारा है, और मैं किसी भी बुनियाद पर इसको गार्ड करने की कोशिश कर रहा हूं। आई हैव डन एन अनप्रेसिडेंटेड एक्ट। I have come down to the floor and I have spoken. I have never spoken to law minister like this. मैंने आज उनसे भी इस तरह बात की है, मैंने आपके मोअज़्ज़िज़ अरकान से भी ऐसे बात की थी, क्योंकि इस मसले में कोई बहुत पॉलिटिकल बात होनी नहीं चाहिए। इस मसले को आपने जो नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल, ऑपरेशनल, मिलिटरीली आपकी सारी बातें ठीक हैं, इन सब में किसी का कोई ताल्लुक बशमूल नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल
We know that it is a composite body. उसको प्राइम मिनिस्टर चेयर करते हैं, सर्टेन मेंबर्स ऑफ द फेडरल कैबिनेट और सारे सर्विसेज चीफ उसके मेंबर होते हैं, तो उसमें मियां नवाज शरीफ साहब तो नहीं होते। इसी तरह से जो ऑपरेशनल मिलिट्री जो है आपकी कंबाइंड ऑपरेशंस की DGMO हैं, आपके चीफ्स हैं, सर्विसेज चीफ हैं, वो फैसले करते हैं और वो गवर्नमेंट को सिर्फ इन्फॉर्म करते हैं कि हम क्या फैसले कर रहे हैं। इसी तरह से फिर आपका जो तीसरा नुक्ता है कि क्या उनको इन्फ्लुएंस किया गया, बिल्कुल नहीं, कैबिनेट का फैसला है। मुशावरत की बात अज़मा ने की थी, आपने सारी बात जो की थी, तो मैंने ये 3 क्वेश्चंस फ्रेज कर दिए हैं और आखिरी भी मैं आपके सामने रख देता हूँ, आखिरी भी रख देता हूँ। चौथा उनका ये है कि जब सीज फायर हुआ है तो सीज फायर के मौके पर भी क्या मियाँ साहब से कोई रहनुमाई ली गई, तो इस पर आप अपनी बात को ज़रा बिल्कुल इसके पैराए में रख के, ताकि कोई हीटेड डिबेट इस इशू पे ना आए। बहुत शुक्रिया जनाब स्पीकर, मेरे लिए बहुत आसान जो है वो आपने खुद जो अब फ्रेज किया है तो ज़्यादा आसान हो गया है। गुजारिश ये है कि मैं जो मैंने पहले कहा मैं उसकी कंटिन्यूटी में कहना चाहती हूँ। मैंने ज़ेरे निगरानी का लफ्ज़ इस्तेमाल किया और ज़ेरे निगरानी किसी बड़े की होती है, और मैंने ये भी कहा कि उनसे बड़ा स्टेट्समैन या उनसे बड़ा लीडर इस वक्त पाकिस्तान में और कोई नहीं है जो इस किस्म के हालात को बेहतर पहले से जानता हो, एक्सपीरियंस कर चुका हो। अब ये जो भाई ने सवालात किए, मुझे तो वैसे हैरत हुई है इन सवालात के ऊपर। उनको अच्छे से पता है कि सिक्योरिटी काउंसिल की तश्कील क्या होती है, उनको बहुत अच्छे से पता है, और बड़ी बात है कि आज उन्होंने जो है वो इस बात का क्रेडिट भी लेने की कोशिश की। शायद उनमें उनके अंदर जो है वो भी ये मौजूद है पाकिस्तानियत, कि उन्होंने जो है वो ने कहा कि लम्हा बहला सूरत हाल चेंज हो रही थी। एक तो मैं बता दूं कि सिक्योरिटी काउंसिल की मीटिंग भी जो है वो जब अटैक्स हुए उससे पहले हो चुकी थी, जब वज़ीर आज़म ने जो है वो इख्तियार दे दिया था अफवाज को कि वो अपनी तैयारी करें और जो बेहतर वो समझते हैं वो इसके ऊपर जवाब देंगे। उसके साथ साथ जो कैबिनेट का डिसीजन है, ज़ाहिर है कैबिनेट का डिसीजन भी अंडर प्राइम मिनिस्टर होता है, और प्राइम मिनिस्टर साहब मैंने जैसे पहले गुजारिश की कि हर अहम मामलात के ऊपर वो एक किसी बड़े से उसकी राय लेना, उस बड़े से उस मुशावरत करने में कोई बुराई नहीं होती। यहाँ तो KPK के ठेकों से मुतल्लिक जेलों में जो है वो मुशावरत हो रही होती है, भाई ये तो मतलब पूरे मुल्क की सलामती का मामला था। और आखिरी बात यह है जनाब स्पीकर कि जो ये मुशावरत या जो ज़ेरे निगरानी की बात है, ये एक या इंटरनेशनल प्रेशर्स की जो उन्होंने बात की, ये जितने भी मामलात उस वक़्त पाकिस्तान के अंदर हो रहे थे, पाकिस्तान जिन हालात से गुजर रहा था, और उसके अंदर जो एक बहुत ज़बरदस्त किस्म का रिस्पॉन्स और अल्लाह पाक की मदद और रहनुमाई के साथ जो फतेह पाकिस्तान ने हासिल की, वो यकीनन वो तमाम स्ट्रेटजी जो वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने अपनी अफवाज पाकिस्तान के साथ, अपनी कैबिनेट के साथ, सिक्योरिटी काउंसिल के साथ और मियां नवाज शरीफ साहब की मशावरत के साथ बनाई, उस तमाम ने पाकिस्तान को सुरखरू किया। और आज हैरत की बात यह है, सर तकलीफ की बात यह है, मोदी अंडर डिस्कशन है इंडिया में, उसको बैश किया जा रहा है मीडिया की तरफ से, उसको बैश किया जा रहा है पब्लिक की तरफ से, उसको बैश किया जा रहा है पॉलिटिकल पार्टीज की तरफ से। और हमारे यहां क्या हो रहा है कि एक सिर्फ जंग का एक दिन, जैसे मैंने कहा पहले तो ये था जंग होनी नहीं, ये तो इनका आपस का गठजोड़ है। लीमा बीबी के बयानात ऑन रिकॉर्ड मौजूद है, मेरे पास रिकॉर्डिंग है। उसके बाद जब जंग में हमने फतह हासिल की तो जो है आग के आगे हाथ तापने के लिए बहुत सारे आ गए कि वो हाँ जी हमने जंग में चले, बहुत अच्छी बात, आप भी पाकिस्तानी हैं, आप जंग का क्रेडिट ले लें, हमें तो वो भी देने में इतराज नहीं है। लेकिन अभी जंग को खत्म हुए 48 घंटे नहीं हुए जनाब स्पीकर, उस वक्त से लेकर आज तक जो तूफाने बदतमीजी, जो एक सियासत, जो एक अभी भी मलायन करने की जो एक स्ट्रेटेजी चल रही है जनाब स्पीकर, वो किसकी है? उसके बारे में आज हमें सबको, मोदी ने कल पाकिस्तान की यूथ को गोली मारने की धमकी दी है जनाब स्पीकर। आज यहां से बात होनी चाहिए थी मोदी की उस गोली की धमकी के खिलाफ। आज बात हो रही है आपने नवाज शरीफ से मुशावरत क्यों कर ली, आपने नवाज शरीफ को ज़ेरे निगरानी क्यों कह दिया। आपको आज यहां बात करनी चाहिए थी कि मोदी जो एक पागलपन का शिकार है, जो इंतखाबी जो सियासत है उसमें अपने लिए कोई माइलेज इकट्ठी करने के लिए वो ये एक जंग का माहौल बना रहा है। और जहां तक सीज फायर की बात है जनाब स्पीकर, पाकिस्तान एक पुरअमन कौम है, पाकिस्तान एक पुरअमन मुल्क है। वजीर आजम समेत, आर्मी चीफ समेत, इवन जो है मियां साहब की भी हमेशा से स्टेटेड पॉलिसी रही है कि हम पुरअमन लोग हैं, जंगे हम नहीं चाहते, लेकिन
जब जंगों का रिस्पॉन्स देने की बारी आती है तो वो पहले भी 28 मई को जो है 5 के मुकाबले में 6 धमाके करके की थी, और अब भी 10 मई को हमने ये जवाब दे दिया कि जिस राफेल के ऊपर ये बहुत इतराया करते थे। अच्छा, मैं एक बात कहूँ यार, एक सेकंड देखिए आजमा, एक सेकंड मुझे देंगे। देखिए बात सुने। नहीं ऐसे नहीं, देखिए भाई साहब, आप मेरी बात, मैं आपसे मुखातिब हूं। मैं जब आपको फ्लोर देता हूं तो मैं इंश्योर करता हूं कि आपकी बात सुनी जाए। प्लीज डोंट डू दिस जो आप कर रहे हैं, मेरी आपसे दरख्वास्त है। दिस इज नो वे। आप अपनी तकरीर में जो बात कहना चाहते हैं वो कहें। ब्रिगेडियर साहब ने बात की, मेरे पास क्योंकि उस दिन अज़मा मौजूद नहीं थी, मैंने इनसे कहा था, मैंने हाउस में बैठ के कहा था कि आप तशरीफ रखें, जब तक मेंबर खुद मौजूद नहीं है आप उनके मुतल्लिक बात नहीं कर सकते। आज वो हाउस में आई हैं, इन्होंने नुक्ता उठाया है, इन्होंने अपनी बात कर ली है, वो उसका जवाब दे रही हैं। आप ऐसा प्लीज ऐसा ना करें यार, आप क्या कर रहे हैं? प्लीज मैं सर, मेरी आपसे दरख्वास्त है, मैं आई टेक फुल रिगार्ड ऑफ व्हाट यू से, बट डोंट मिस यूज इट। ऐसा ना करें जी। अज़मा प्लीज। फिर मेरा ख्याल है कुछ शायद जिनको समझ नहीं आई उनको दोबारा समझाने की एक फ्रेज में कोशिश करती हूँ। कौमी सलामती जो हमारी कमेटी है उसकी कॉम्पोजिशन सबको मालूम है, कैबिनेट की कॉम्पोजिशन सबको मालूम है। जो वॉरफेयर के अंदर जो मामला चल रहे थे, जो सूरत हाल हो रही थी, उसके अंदर जो वजीर आजम पाकिस्तान है वो तमाम तर मुशावरत जो है वो जहां जहां उनको करनी चाहिए थी वो कर रहे थे। जो भी इंटरनेशनल प्लेयर्स इसके अंदर मौजूद थे, जो पाकिस्तान ने जब 10 मई को रिस्पांस दिया और उसके बाद चंद घंटों के अंदर जब इंडिया घुटनों पे आया और उसने जंग बंदी की पेशकश की, अफसोस की बात यह है जनाब स्पीकर, सारी दुनिया मान रही है पाकिस्तान ने राफेल तैयारे गिराए। कौन नहीं मान रहा? ये सारी दुनिया मान रही है पाकिस्तान ने भारत को हरा दिया। कौन नहीं मान रहा? ये कि सारी दुनिया मान रही है कि पाकिस्तान की स्ट्रेटजी सबसे बेहतर थी। कौन नहीं मान रहा? ये सारी दुनिया कह रही है, सारी दुनिया कह रही है, पूरी दुनिया के अखबारात कह रहे हैं पाकिस्तान की स्ट्रेटजी बहुत बेहतर थी। कौन नहीं मान रहा? ये आप जनाब स्पीकर इनके सामने बीन बजाएं या इनके सामने जो है कुछ भी करके देख लें, इनका तवा काला जो नहीं है, इनका तवा चिट्टा है, उसने चिट्टा ही रहना है। और अगर केपीके के ठेकों से इनकी तवज्जो जो जेल के अंदर वो बाहर निकल आए तो मुल्क के बारे में भी सोच लें कुछ। आतिश न्यूज, पाकिस्तान के सबसे बड़े न्यूज नेटवर्क का हिस्सा बनने का सुनहरी मौका। मुल्क भर से दर्ज झील आसामियों की जरूरत है। ब्यूरो चीफ, डेप्यूटी ब्यूरो चीफ, वीडियो एडिटर, सिटी रिपोर्टर, तहसील रिपोर्टर, डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर, क्राइम रिपोर्टर, प्रेस रिपोर्टर, नुमाइंदा, नामह नगार। चीफ एग्जीक्यूटिव सैयद जमशेद बुखारी। मजीद मालूमात के लिए इन नंबर्स पर राबिता करें।